अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज यूथ वेबिनार सीरीज का नंबर 46 वेबिनार के साथ हम हाजिर हैं। आज का वेबिनार का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बहुत डिस्कस होता है, और खास तौर पे क्लैरिटी नहीं मिलती लोगों को बात करने में, तो ये बहुत कॉमन है। कैरेक्टर वर्सेस क्वालिफिकेशन। So, welcome everyone to this important conversation and one that challenges fundamental belief many of us grow with, that academic degrees and qualifications are the ultimate gateway to success. But today we are driving deeper. Is that really the full story? Can a perfect GPA replace integrity? So, in today's competitive world, academic qualifications are often used as the primary benchmark for success. However, this webinar, what truly defines you, invites you to explore a deeper truth that character plays a vital role in shaping one's professional journey and personal fulfillment. While degrees opens door, it is integrity, resilience, empathy, work ethics that determine how far one can truly go. और इस मौजू पे बात करने के लिए आज दो बहुत लर्नेड स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। जो पहली स्पीकर है, मैं उनका तारुफ करवाऊंगा, गजाला कमल साहिबा। शी इज एन एचआर प्रोफेशनल। Ghazala Kamal is a certified HR professional with an MPhil in organizational business psychology and an MPA in human resource management, bringing over 8 years of experience across the automotive, FMCG, pharmaceutical, and retail sectors. Currently serving as manager human resource, she has demonstrated expertise in talent acquisition, HR operations, employee and industrial relations, organization effectiveness, and ERP HCMS systems. Known for her energetic and proactive approach, Ghazal is a strategic HR partner skilled in leading organizational change, fostering high-performing teams, and driving productivity through innovative HR practices and policies. Ghazala, welcome on board. Thank you so much for joining us. आज मुझे पता है इंटरनेट का इशू है, बारिश मुस्तकिल ऑलमोस्ट आधे पाकिस्तान में बारिश चल रही है, तो वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आज के जो सेकंड हमारे स्पीकर हैं, वो नन अदर देन अरशद आकिफ। अरशद आकिफ जो ये अपने बल पे जिस फोरम पे हम बैठे हुए हैं, ये इनका ब्रेन चाइल्ड है। अरशद महमूद आकिफ, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर, एचआरएम एक्सपर्ट एंड सीईओ ऑफ एसके डेवलपमेंट। Arshad Akif is an HRD professional, consultant, and entrepreneur with over 25 years of experience in corporate and development sectors in the fields of human resource management, management and leadership, HR outsourcing, youth development and employment, soft skills. He's a member of ISO 260 in 2 international working groups on recruitment and diversity and inclusion. Also the member of the National Mirror Committee of PSQCA, Pakistan on HRM Standard Development. Arshad bhai, most welcome. आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर वर्सेस क्वालिफिकेशन, व्हाट ट्रूली डिफाइंस करियर सक्सेस is about understanding what truly drives sustainable success in the real world. We will explore the things like honesty, grit, adaptability, and leadership played a defining role even when qualifications alone didn't suffice. गजल साहिबा, मैं आपको दावत दूंगा कि इस टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारी ऑडियंस को बताएं। आज अपने बल पे का 46 वेबिनार है और हमारी ज्यादातर जो ऑडियंस है वो यूथ है, यंग प्रोफेशनल्स हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर प्लीज आपसे सुनना चाहेंगे अपने हमारे ऑडियंस को, इस टॉपिक के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और मैं चाहती हूँ कि इस डिस्कशन को हम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाएं, नॉट ओनली बाय डिस्कसिंग बट बाय शेयरिंग आइडियाज एज वेल। सो जैसे कि टॉपिक रिफ्लेक्ट कर रहा है कैरेक्टर वर्सेस क्वालिफिकेशन। जब हम बात करते हैं कैरेक्टर की और जब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन को समझते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कैरेक्टर, तो हम कैरेक्टर में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बात कर रहे होते हैं। देखिए, कैरेक्टर इज अ डिफाइनिंग फैक्टर बेस्ड ऑन इंटेग्रिटी, रेजिलियंस, समवंस वर्क एथिक, सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस। ये सारे फैक्टर्स मिलके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे होते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल की डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, जो वो पर्सनैलिटी अपने साथ कैरी करता है जो वो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है। बट जब हम इस सारे डिफाइनिंग फैक्टर्स को ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस या लाइफ सक्सेस के साथ लिंक करते हैं,
तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्वालिफिकेशन का। कैरेक्टर और क्वालिफिकेशन बोथ वर्क हैंड टू हैंड, दोनों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी होता है किसी भी इंडिविजुअल की सक्सेस के लिए। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है क्वालिफिकेशन। आपके हाथ में क्वालिफिकेशन होगी तो आप अपने कैरेक्टर की वो पेक्युलरिटीज जिनका मैंने अभी जिक्र किया उसकी बुनियाद पे कामयाब हो सकेंगे। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में जी, आप जब क्वालिफिकेशन अटेन करते हैं तो वो क्वालिफिकेशन आपके ओवरऑल कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा होता है। ये इसी तरह है कि मैं कहूं कि मुझे एक इंतहाई अच्छी कैरेक्टर का एक एम्प्लॉय लाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या एक इंडिविजुअल ने बहुत अच्छे कैरेक्टर का मालिक है, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है या यूनिवर्सिटी में जाता है या किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है, लेकिन वो वहां परफॉर्म नहीं कर पाता, तो खाली कैरेक्टर की बुनियाद पे वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बिकॉज सक्सेसफुल होने के लिए स्किल का होना बहुत जरूरी है। स्किल के बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सिर्फ कैरेक्टर की बुनियाद पे आप स्किलफुल नहीं हो सकते। सो क्वालिफिकेशन आपकी स्किल को इनहेंस करती है, और क्वालिफिकेशन ही आपके कैरेक्टर की पेक्युलरिटीज को भी इनहेंस करती है। आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी आपकी स्किल के साथ और आपकी क्वालिफिकेशन के साथ ही इनहेंस हो रहा होता है। तो ये दोनों फैक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं सक्सेसफुल होने के लिए। बट मेंटेनेंस ऑफ सक्सेस की जब हम बात करते हैं, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री ले ली बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, लेकिन आपके किरदार में, आपकी कैरेक्टर में बहुत सारे फ्लॉज हैं। आप पंक्चुअल नहीं हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं लेकिन आप एक अच्छे टीम मैनेजर नहीं हैं, आपकी टीम के साथ हार्मनी डेवलप नहीं होती, तो आप लाइकलीहुड है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस भी करियर पाथ को आपने अटेन किया है, वहां आप सक्सेसफुल होने के बाद उस सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बाय द टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता आपके किरदार के वो पहलू खुलते चले जाएंगे जो आपको वो कामयाब रहने नहीं देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां आपने क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे कोई मुकाम अचीव किया है। So, in a short term, having a lot of skill could get you a job, no matter how horrible you person you are. But which is going to define your long term success in your respective field. बहुत दफा मैंने देखा है ऐसे, I have seen a lot of time people having hired others because they need a certain amount of skill in their company. Even if that person doesn't the most fun with work or the kindest person alive, they have to accept his or her because of skill. आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत काबिल हैं, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके किरदार और आपका कैरेक्टर आपको लॉन्ग टर्म में स्किल ना होने की बुनियाद पे कोई बहुत सारा आपकी कामयाबी में कोई बहुत रोल प्ले नहीं कर पाएगा। यहां तक हम कोई सवाल हो तो उसको ले सकते हैं। सही। ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ा खूबसूरती से आपने डिफाइन किया। अर्षद भाई, आप प्लीज इस टॉपिक के बारे में बताइएगा, जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे हम लेना शुरू कर देंगे। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में? जी बिल्कुल, मैं एक तो सेकंड करूंगा गजाला साहिबा को। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें करेक्टर को भी डिफाइन किया है और इसकी इम्पोर्टेंस एंड इट्स बैलेंस विद द क्वालिफिकेशन। दो एक और चीज़ें जो मैं डाटा के हवाले से शेयर करना चाहूँगा। एक तो हम ज़रा वी नीड टू डिफाइन फर्दर मोर द टर्म ऑफ करेक्टर, उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। लेकिन लेट मी अगेन प्लीज़ अप्रिशिएट दी ऑडियंस कि जो इस वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो रहे हैं, वो चाय और पकौड़ों की बजाय जो है वो वेबिनार के अंदर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो दैट रियली शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज फॉर आवर यूथ एंड वी आर प्राउड ऑफ देम। तो बाय द वे, चूंकि वो नज़र नहीं आ रहे, तो दे कैन हैव पकौड़ा एंड चाय, डजंट मैटर, दे मे कंटिन्यू। एंड लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। देखिए, अभी मैं कुछ रिसर्च में नज़र से गुजरी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जो पब्लिश्ड है, एंड दैट रिसर्च सेज कि 85% ऑफ सक्सेस इन द वर्क प्लेस इज ड्यू टू पर्सनैलिटी एंड करेक्टर, वेयर एज only 15% सक्सेस इज बिकॉज ऑफ टेक्निकल नॉलेज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को सब जानते हैं। अच्छा, एक और रिसर्च वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है,
2023 की रिपोर्ट में दे रैंक्ड फर्स्ट 4 characteristics or skills that employers admire most. एक ऑर्गेनाइजेशन, टीम लीडर और एम्प्लॉयर क्या देखना चाहता है? एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंटेग्रिटी एंड वर्क एथिक्स, resilience, flexibility. It is again part of the character. और फिर इसके बाद बाकी सॉफ्ट स्किल्स का जो है वो जिक्र किया जाता है। और तीसरी रिसर्च नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस एंड एम्प्लॉयर्स का सर्वे है 2022 का। उन्होंने जो रैंक किया, परसेंटेज निकाली कि कौन से एट्रीब्यूट्स हैं कि जो किसी भी जॉब कैंडिडेट्स के अंदर ज्यादा देखे जाते हैं। एंड सरप्राइजिंगली 80% इज वर्क एथिक्स। सेकेंड, इसके बाद 83% टीम वर्क एंड देन अदर स्किल्स। क्योंकि बाकी सॉफ्ट स्किल्स इज नॉट अवर टूडेज टॉपिक, तो हम इस तक कन्फाइन रहते हैं। मैंने अर्ज किया था कि थोड़ा सा डिफाइन करने की ज़रूरत है। जैसे पहले बताया गया कि करैक्टर के अंदर इंटेग्रिटी, इखलाक, रेजिलियंस, इस तरह की सब चीज़ें आती हैं, बट इट्स सोर्स इज आवर फैमिली एंड आवर सोसाइटी। तो थोड़ा सा फर्क सोसाइटी टू सोसाइटी इसमें आता है, मगर जो इंटेग्रिटी, इखलाक, कदर, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एम्पैथी, ठीक है ना, ट्रुथ, ये वो इंटरनेशनल या रादर लेट मी से द यूनिवर्सल एथिक्स हैं विच आर पार्ट ऑफ करेक्टर। वो कोई भी रिलीजियस के लोग हों, इवन नॉन रिलीजियस जिसको हम एथिस्ट कहते हैं, या सेकुलर हम उसको कहते हैं, या किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हों, करेक्टर के इस डेफिनेशन के ऊपर सबका इत्तेफाक है और सब ये समझते हैं कि ये बड़ा अहम है। डिग्री नो डाउट opens the door to you towards the business or job employment, but sustainability comes from the character. अगर वो नहीं है तो आप ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। इस पे भी अगर आप बिजनेस रिसर्च भी जाके कर रहे होंगे तो यू विल सी कि इंटरनेशनल इट इज सेड कि अगर एथिक्स और करेक्टर ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन भी ख़त्म हो जाती है, वो भी बियॉन्ड 8 ईयर्स नहीं चल पाती, और इंडिविजुअल तो बड़ी जल्दी जो है वो एक्सपोज हो जाता है और उसकी अपनी टीम और एम्प्लॉयर उसको नापसंद करते हैं। कैरेक्टर की डेफिनेशन को अगर थोड़ा और बढ़ा लें तो देखें, एज एन एम्प्लॉई और एज अ बिजनेस पर्सन, आप जब बात करते हैं कैरेक्टर की तो जाहिर है यू विल से और स्पीक ट्रुथ। तो जब आपने सच बोलना है तो आप एक चीज जो कम कीमत की है ज्यादा कीमत पे नहीं बेचेंगे, आप कम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आप इसी तरह से व्हेन यू राइट योर सीवी तो आप उसमें झूठ नहीं लिखेंगे, और आप उस जॉब के लिए अपने आप को फ्रंट पे नहीं लेके आएंगे जिस जॉब की स्किल आप में नहीं है। तो गोया एक्सटेंड टू समहाउ आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं आल्सो बिकम ऑफ योर कैरेक्टर, और वो आपकी टेक्निकल नो हाउ को भी आगे चलाने का सबब बनती। तो इसलिए द फाउंडेशन इज कैरेक्टर, एंड आई एम नॉट सेइंग, नॉट क्लेमिंग कैरेक्टर कैन रिप्लेस द क्वालिफिकेशन और दिस डिग्री और सर्टिफिकेट, नो, बट कैरेक्टर इज फाउंडेशन। क्योंकि जैसे हमने देखा है और बारहा जो मैंने आपके सामने स्टैटिस्टिक्स इंटरनेशनली शेयर किए हैं कि ये बात तो किसी मौलवी साहब, पीर या मेरे जैसे किसी एजेड आदमी की तो बात नहीं है ना कि ये कि इखलाक बड़ा अहम है। नहीं, वी आर शेयरिंग विद यू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ रिसर्च कि आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस, कामयाबी, सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन योर करेक्टर। क्योंकि दिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा अदारे की रिसर्च अगर कहेगी जी 85% आपकी सक्सेस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी और करेक्टर से आएगा, तो वी डू नॉट नीड, बट बीइंग अ रिलीजियस पर्सन आई वुड से कि रिलीजियस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट देता है कि आप
एथिकल रहें। तो इसलिए ऑल दोज हु बिलीव इन रिलीजन तो दे शुड कैरी इट ऑन, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने में ज़्यादा मदद देता है। फ्रॉम माई साइड दिस इज द प्रिलिमिनरी बेसिक स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच भाई। हम आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। गजाला, आपने बड़ा खूबसूरती से डिफाइन किया अर्शद भाई ने भी कि दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। एक चीज बताएं, आजकल के दौर में और खासतौर पे इस चीज को ध्यान में रखें कि हमारी जो ऑडियंस है वो यूथ है, यंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल उसमें काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड डिग्रीज। एक जमाना था, पुराना जमाना था, या चले एक बहुत हाई जॉब पे हम बात करते हैं तो चले वो डिग्री लिमिटेड भी हो सकती है। बट आजकल ये होता है कि एक जॉब आती है, उसके लिए 600 एप्लीकेशन आती है, 600 की 600 की सेम डिग्री होती है। हमने एक पब्लिक सेक्टर के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे थे अक्रॉस पाकिस्तान, 20 लोकेशंस की रिक्रूटमेंट थी। उनकी रिक्वायरमेंट थी मास्टर्स विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, तो एनी मास्टर्स। अब वो गवर्नमेंट इदारा था, सेमी गवर्नमेंट इदारा था। अब यहां पे बात आती है कि एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेशन क्या होती है, लोग अपने आप को कैसे करें। एट टाइम्स आपके अंदर चीज होती है, आप पोर्ट्रे नहीं कर पाते। तो क्या एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयर की, जबकि डिग्री तो मौजूद है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिग्री के बगैर तो आप उस डोर तक पहुंच ही नहीं सकते जहां आपने नॉक करना है। बट 600 लोग हैं, 600 के पास एक डिग्री है, सबके पास उनकी डिग्रीज है, इसलिए हमारे ग्रेजुएट्स बहुत निकल रहे हैं उसके हिसाब से। तो उससे आगे क्या किया जाए, क्या एक्सपेक्ट करता है एम्प्लॉयर, अगर हम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कौन सी ट्रेड्स होनी चाहिए, कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, अज्यूमिंग ये कि डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी है। जी जी, गजाल, आपसे जी थैंक जी। यू थैंक यू जी। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, बट आई गॉट योर क्वेश्चन। देखिए, जो इस वक्त एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल से, इसमें थोड़ा सा बहुत सारे एस्पेक्ट को समझना होगा। बिकॉज एक तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आजकल जनरेशनल जो डाइवर्सिटी है, उसके बाद बिकॉज जनरेशनल डाइवर्सिटी पे बहुत ज्यादा बात हो रही आपकी आवाज मिस हो गई है गजाला। है। इदारों की रिक्वायरमेंट भी बदल रही है, ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रही होती हैं, मल्टी फोल्डेड हो रही होती हैं एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। लेकिन देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर एक्सट्रीमली कॉमन इन एनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी generations and as far as we are talking about genders या employees, काइंड ऑफ एम्प्लॉयज जिसमें ऑफिसर्स ग्रेड आ जाता है, आपका मैनेजमेंट ग्रेड या आपका वर्कर। जो कॉमन फिनोमेना है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर के ट्रेट्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन देखती है, वो मॉरल इंटेग्रिटी से स्टार्ट होती है, ऑनेस्टी पे जाती है, एम्पैथी, रेजिलियंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल जजमेंट। ये वो चीजें हैं जो कैरेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखा जाता है। एंड दीज ऑल द फैक्टर्स आर कॉमन फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब, फॉर एनी काइंड ऑफ लेबर। जब मैं मॉरल इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी की बात करती हूँ, इसमें ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप की बात इसलिए बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस दे गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट्स के जिसमें इंडिविजुअल को लेकर आए, उसमें ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो और उसको फॉलो करता हो, उसका किरदार में ये एक खूबी होनी चाहिए। अच्छा, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप क्यों? बिकॉज देखिए, व्हेन यू वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन नॉट वर्क इन silos. You have to work with other people. There are teams who take the organization upward. अब टीम में डिफरेंट मिजाज के लोग होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज के लोग होते हैं, एंड दिस इज वेरी कॉमन। घर में भी दो लोग होते हैं तो पर्सनैलिटी क्लैश हो जाते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन पे में पर्सनैलिटी की क्लैश की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट के इश्यूज आते हैं, तो दैट कैन कॉस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन अ लॉट। और वो कॉस्ट फाइनेंशियल होता है, प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, आप बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लूज कर बैठते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिस्टर्ब होता है। तो ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप सबसे पहले, टीम बिल्डिंग, टीम फॉस्टरिंग, कोलैबोरेशन एंड लॉयल्टी, ये एक फैक्टर मैं इसलिए रख रही हूँ मोरल इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और एम्पैथी के साथ, कि रिलेशनशिप में कितना बेहतर तरीके से
ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप डायनामिक्स में इंडिविजुअल काम करता है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज के साथ कितना कोलैबोरेटली काम करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है nowadays whenever we are hiring on different cadre on different level. दूसरी चीज कल्चरल फिट। देखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन अ सर्टेन इन्वायरमेंट जिसको हम कल्चर बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डिफाइंड और अनडिफाइंड रूल्स होते हैं, और वो रूल्स उन पिलर्स पे, उन रूल्स को ऑर्गेनाइजेशन एज पिलर लेके चलती है जिसपे पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होता है। सो कल्चरल फिट, आपके इदारे के साथ कितना कल्चरल फिट है इंडिविजुअली, वो अपोजिंग व्यूज होंगे उसके, बट वो आपके कल्चर को कितना वैल्यू करता है। बिकॉज व्हेन यू ज्वाइन इन ऑर्गेनाइजेशन यू आर ज्वाइनिंग अ फैमिली, और उस फैमिली में आपके अपोजिंग व्यूज के लोग हो सकते हैं, बट यू हैव टू मेंटेन द कल्चरल कोलैबोरेशन। दूसरी चीज जिसपे बहुत ज्यादा बात होती है वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं वूका, और हम ये कहते हैं नाउ वी आर इन अ वूका वर्ल्ड। वूका को अगर मैं डिफाइन करूं, इट वी कॉल इट वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, क्रिटिकलिटी एंड एम्बिग्विटी। कि आज की दुनिया जो है वो वूका दुनिया है, वूका वर्ल्ड है। आपने एक वॉलेटाइल, अनसर्टेन, क्रिटिकल और एक इंतहाई एम्बिग्युअस किस्म के एनवायरनमेंट में काम करना है। कभी डॉलर पैरिटी आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कभी आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, कभी आपका फ्लड आ जाता है, कभी और एनवायरमेंटल चैलेंजेस, पॉलिटिकल प्रेशर्स, पॉलिटिकल इश्यू। मैं उसको बिल्कुल कोट करना चाहूंगी, जिसमें बड़ा क्लियरली एक मॉडल दिया गया है कि देयर इज अ न्यू मॉडल जिसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को गेज करते हैं। एक दौर होता था जब लोगों को हायरिंग के टाइम पे इंटेलिजेंस की बुनियाद पे हायर किया जाता था, जिसको हम आईक्यू कहते थे, और 60 to 70% आपका टेस्ट जो था वो आईक्यू बेस्ड होता था कि इंडिविजुअल कितना इंटेलिजेंट है। बट देयर इज अ न्यू रिसर्च जिसने 4 और फैसेट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, और उसका मैं थोड़ा सा यहाँ हवाला देना चाहूंगी। वो कहते हैं जी 4 फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पे साइकोलॉजिस्ट की का कहना है कि देर आर 4 टाइप ऑफ फैसेट्स, फैक्टर्स या टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जिसकी बुनियाद पे आप लोगों को हायर करें। इंटेलिजेंस क्वेश्चन एक आपका फिनोमेना है कि इंटेलिजेंस की बुनियाद पे आप लोगों को हायर करें। फिर एक फिनोमेना है इमोशनल क्वेश्चन, कि आप इमोशनली कितने स्टेबल लोगों को हायर करते हैं, ऐसे लोग जो आपके साथ काम करें वो इमोशनली कितने स्टेबल हैं। फिर आता है सोशल क्वेश्चन, कि सोशल क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट डाइवर्स किस्म के लोग हैं और वो एक सोशल कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें सोशली लोग कितना एक दूसरे के साथ लिंक हैं। सोशल क्वेश्चन कितना अच्छा है, लोगों के साथ कितना कोलैबोरेटली चलते हैं। इमोशनल क्वेश्चन को जब हम डिफाइन करते हैं तो इमोशनल क्वेश्चन का मतलब होता है कि अपने इमोशंस को समझना कि मेरी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और मेरी नीड्स और रिक्वायरमेंट पूरी होने ना होने के टाइम पे मुझे किस तरह मैं बिहेव करता हूं और किस तरह मुझे बिहेव करना है। और जब मैं किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ डील करता हूं किसी सोशल सेटिंग में, तो मैं अगले की इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को कितना समझता हूं, कि कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं जो से किसी इंडिविजुअल को इमोशनली इंड्यूस कर सकते हैं, और मैं उसको इमोशनली इंड्यूस किए बगैर काम करूं, उसको इमोशनली डिस्टर्ब किए बगैर काम करूं। लेट्स से एक बॉस है जिसने एक एम्प्लॉय को काम दिया, अपने सबऑर्डिनेट को, और उसने वो काम नहीं किया, तो इमोशनली डिस्टर्ब होके बॉस ने उस पर शाउटिंग शुरू कर दी और सुना नहीं कि इंडिविजुअल की क्या ऐसी फैक्टर्स है जिसकी बुनियाद पे वो अपना काम नहीं कर सका। इस फिनोमेना में उसने जो शाउट किया उसने कितना डिस्टर्ब किया उसके सबऑर्डिनेट को। तो इमोशनल रेगुलेशन को इमोशनल क्वेश्चन का नाम दिया। तीसरा सोशल क्वेश्चन जो मैंने बताया कि सोशली डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के साथ किस तरह बिहेव करना है, सोशली किस तरह आपने चलना है, ये 3 फैक्टर्स। और जो चौथा फैक्टर साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं वो है एडवर्सिटी क्वेश्चन। जब अच्छा हालात हो तो एवरीवन परफॉर्म रियली गुड, अच्छे वक्तों में सब अच्छा होता है, द मोमेंट चीजें खराब होना शुरू होती हैं तो उस वक्त लोग किस तरह बिहेव करते हैं। एडवर्सिटी में
बुरे हालात में कोई कैसे बिहेव करता है, जैसे कि बॉस ने काम दिया, सबऑर्डिनेट ने नहीं किया और एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन अप्रोच कर गई। अब एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उस एडवर्सिटी में दोनों ने, बॉस ने और उसके सबऑर्डिनेट ने कैसे बिहेव करना है कि उस एडवर्सिटी से निकल सके। तो ये चार फैक्टर्स जो हैं, ये अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट अप्रूवन थ्योरी है कि ये चार फैक्टर बहुत हद तक रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की कामयाबी में। इंटेलिजेंस का रोल, सोशल और एडवर्सिटी, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, रोला बहुत अच्छी तरह आपने डिफाइन किया। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये कैरेक्टर मैटर्स, इसमें कोई शक नहीं है। कैन समवन सक्सीड इन लॉन्ग टर्म विद स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशंस बट वीक कैरेक्टर? क्या क्वालिफिकेशन या जो पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स हैं वो कैरेक्टर्स को छुपा पाती हैं क्या? ऐसा होता है क्या? ये क्वेश्चन है कि एक्चुअली कि क्या कोई सरवाइव कर सकता है, सक्सीड कर सकता है, क्वालिफिकेशन स्ट्रांग है बट कैरेक्टर की चीजें कमजोर है, बट पर्दा टलता है? जी बिल्कुल। फॉर वो एक पुराना मुहावरा है ना कि यू कैन मेक सम पीपल फूल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट मेक पीपल फूल फॉर द ऑल द टाइम एंड टू ऑल द पीपल। ये मुमकिन नहीं होता कि हमेशा के लिए हम लोगों को बेवकूफ़ बना दें। तो इसलिए जो टेक्निकल स्किल है, जो हायर क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक बाज़ लोगों की बड़ी डैशी किस्म की पर्सनालिटी होती है, फॉर सम टाइम दे कैन hide their जो weaknesses of the character but not the all the time. That's why जो रिसर्च मैंने अभी आपको रेफर की थी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा गया है कि ऐसे लोग वक्ती तौर पर बहुत कामयाब होते हैं लेकिन लॉन्ग रन में नहीं होते। वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मसलन एजुकेशन क्या करती, इट हेल्प्स यू टू टू हैव नॉलेज, एंड करेक्टर क्या करता है कि and it help to apply the knowledge responsibly। लेकिन अगर टेक्निकल somebody और knowledge wise somebody is very strong, तो वो तो अगर करेक्टर नहीं है तो इवल जीनियस होगा। वो अपने मफाद के लिए सोसाइटी, गवर्नमेंट, समटाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो खेल जाएगा। जैसे हमारी जैसी कंट्रीज के अंदर मिसाइल होता है जी, फलां इंडस्ट्री के अंदर कार्टर बन गया। अब चूंकि कैरेक्टर नहीं है तो वो कार्टल जो है वो लाखों लोगों को मुतासर कर देता है। तो इसलिए कैरेक्टर जो है वो बुनियाद है। एजुकेशन क्या हेल्प्स यू नो व्हाट इज राइट, एंड कैरेक्टर्स हेल्प यू टू डू व्हाट इज राइट, क्योंकि ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। कहीं भी आप जॉब करें, अल्टीमेटली आप जितने भी जीनियस हों, आपका एम्प्लॉयर और टीम लीडर ये देखता है कि आप कितने डिपेंडेबल हैं। अगर उसे ये पता है कि ये सिर्फ जो है वो अपना नाम बनाने के चक्कर में है, अपना मफाद लेने के चक्कर में, तो वो कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करता। और आपको ऐसे रोल्स नहीं दिए जाते कि जिसमें ज़्यादा आपके लिए सीखने का और आगे बढ़ने के मौके। अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अ ब्रिलियंट यूथ प्रोफेशनल विद नो एथिक्स कैन मिस यूज द नॉलेज। जैसे हमें बचपन में एग्जाम्पल दी जाती थी कि भाई अगर एक गन है वो चोर के हाथ आएगा तो डाके मारेगा, वही गन एक सोल्जर के हाथ में आता है तो वो अपनी नेशन को प्रोटेक्ट करता है। लाइक वाइज दी नॉलेज, जबकि जिसके पास करेक्टर है वो उसे रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करते हुए अपने इदारे, अपनी फैमिली और अपने मुल्क के लिए काम कर रहा होता है। तो ये मिक्स हमें चाहिए। इसी तरह से जब हम बात करते हैं, जैसे पिछले दिनों जब कोविड था तो उस वक्त जब सर्वे किए गए, जो रिसर्च रिपोर्ट्स हमने देखी तो उसमें यह था कि व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन फॉर सक्सेस, अ प्रोफेशनल फॉर सक्सेस, एंड दैट इज अडॉप्टेबिलिटी। क्योंकि अडॉप्टेबिलिटी अगर आप में नहीं है तो ये कहाँ से आएगी? व्हेन यू रिस्पेक्ट अदर्स, when you accept others, when you accept the diversity, when you accept the inclusion। अगर ये इनमें से किसी चीज पे आपका बिलीव नहीं है, आपकी शख्सियत में ये चीजें हैं ही नहीं, ओनली वन इज फोकसिंग ऑन व्हाट आई एम गेटिंग, तो वो कभी भी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो सोशली मिक्स जो है वो नहीं करेगा, वो अडाप्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी। तो जब ये बेसिक
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी आर मिसिंग, तो वो फर्क किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर मिस होता चला जाता है। एज ए HR पर्सन, we interact with the different big and small companies, and we are observing the HR and HRD over the 2 decades in Pakistan, कि वो लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया पे जो HR के लोग या जो लीडर्स हैं वो आते हैं, वो बहुत शाइन करती हैं, दिखाते हैं हमने अदारे के लिए ये किया, हमने अदारे के लिए वो किया। वो लोग बड़े अच्छे लोगों को लग रहा था, वाह जी क्या कमाल कर रहा है, ये डाइवर्सिटी का एहतराम कर रहे हैं, ये लोगों के राइट्स का कमाल कर रहे हैं, का एहतराम कर रहे हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, नॉट मोर देन 6 to 8 months, पीपल गेट टू नो द रियलिटी कि ये किसको सर्व कर रहा है, अपने इंटरेस्ट को, इंप्लाइज को, इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को। सो माई आंसर इज, इन लॉन्ग टर्म नो बॉडी कैन हाइड behind the intelligence or knowledge or technical skills if he or she is characterless. और character को please let us define within the professional parameters. वो प्रोफेशनल पैरामीटर्स क्या हैं कि जिसके आप वर्क प्लेस पे आपको क्या होना चाहिए। अदरवाइज तो एथिक्स और करेक्टर्स को जब हम रिलीजियसली या सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो उसमें और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि कौन सा कल्चर अपने नौजवान को, खवातीन को किस तरह से देखना चाहता है, किस लिबास में देखना चाहता है। हम इस वक्त वो बहस नहीं कर रहे। इस वक्त हमारे पेश नजर वर्क प्लेस है। हाँ, आप यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस और यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप वहां रहते हुए, दैट्स वाई कि जो रेफरेंसेस अभी गजाला साहबा ने दिए वो भी सारे वर्क प्लेस के हवाले से मॉडल्स हैं। और मैं भी जो अर्ज कर रहा हूँ वो यही है कि वे यू नीड टू बी respect diversity and inclusion, you must have adaptability, you should have a social skills, कि ये जो आपका इमोशनल कोशेंट है और बाकी चीजें हैं ये सारी आपके करेक्टर से निकलती हैं। अगर करेक्टर में बैलेंस ना हो, वहां पे आप दूसरों के लिए एम्पैथी का जज्बा ना हो, तो बाकी सारी जो इस्तिलाहात एंड टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग एंड विच इज वेरी एसेंशियल to be used and to respect in any workplace, वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं I will come back and urge to our youth कि आपको जितना जोर अपने ग्रेड्स पे लगाना है वो जरूरी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपके अच्छे ग्रेड्स, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए और एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। मगर ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास कि जो है वो एक कुछ पैसे तो हों, लेकिन आप उसे स्पेंडिंग की आपको तरीका ना आता हो, तो वो कहते हैं कि आपके पास जितना भी पैसा हो, अगर आप अपनी बजटिंग बना के नहीं चल सकते तो एट द एंड आप जो है वो गरीब हो जाते हैं। और इस पे रिसर्च मौजूद है कि इवन जिन लोगों को लॉटरीज लगी, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, पता चला चंद साल के बाद वो फिर भूखे ही थे, फिर गरीब थे। द रीजन इज कि पैसा आना एक चीज है एंड हैविंग नॉलेज एंड इंटेलिजेंस टू यूज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसी तरह से किसी पोजीशन पे पहुंचना, कोई क्वालिफिकेशन हासिल कर लेना, दिस इज द वन स्टेप, एंड सस्टेनिंग एट दैट पोजीशन, having success for a longer time, that requires your character along with your skill and your knowledge. Please. थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत जबरदस्त बात की आप दोनों ने कि देखें एक अच्छा कैरेक्टर या कैरेक्टर का मुजाहरा आपकी जिम्मेदारी होती है। स्पेशली यंग ऑडियंस याद रखिएगा जिंदगी में कि एम्पैथी, डिसिप्लिन एक अच्छे कैरेक्टर की निशानी है। कि अगर आप चाहते हैं, ये बड़ी बेसिक सी चीज होती है खासतौर पर यूथ में, और बड़े लोग शिकायत भी कर रहे हैं आजकल जेनजी आ गए हैं कि डिसिप्लिन नहीं है, तो याद रखिएगा एक अच्छा डिसिप्लिन एक अच्छे कैरेक्टर की निशानी है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। गजाल, आपकी तरफ आते हैं, एक क्वेश्चन भी है, उसको मैं रिफ्रेश करके पूछ रहा हूँ ताकि प्रॉपर क्वेश्चन बन जाए। आपका HR से ताल्लुक है, हायरिंग मैनेजर्स या लीडर्स कैसे एवेल्युएट करते हैं कैरेक्टर को बियॉन्ड द रिज्यूमे? इसलिए कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी है, हम कैसे पोर्ट्रे करें, उन्हें कैसे पता चलता होगा? टेक्निक्स हैं, तो आप प्योर HR प्रोफेशनल हैं, तो कैसे जो है हायरिंग मैनेजर या लीडर्स जो है वो एवेल्युएट करते हैं कैरेक्टर
बियॉन्ड द रिज्यूमे कैसे क्या होता है, इसलिए कि ताकि उस चीज का ध्यान रखे हमारी यंग ऑडियंस जो है। जी जी, थैंक यू जी। सबसे पहले तो बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो हमें रिस्पांस मिला अर्शद साहब की तरफ से, बिकॉज वंडरफुल, बड़े अच्छे फैक्टर्स उन्होंने बताए और बड़ी अच्छी एडवाइजेस दी उन्होंने यूथ में। टू आंसर योर क्वेश्चन कि व्हाट आर दोज टेक्निक्स व्हिच वी यूटिलाइज और एम्प्लॉय टू फाइंड आउट द specific and particular characteristics which we see in any candidate। अच्छा, इनिशियली तो एक दौर होता था जब हायरिंग होती थी तो उसमें चूंकि इंटेलिजेंस ही मेन फैक्टर होता था, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड सवालात और उसका क्वेश्चनर होता था। बट नाउ थिंग्स आर टर्निंग रियली गुड एज फार एज एचआर इज कंसर्न। अब साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है और साइकोलॉजिस्ट और एचआर प्रोफेशनल्स ने बहुत से ऐसे मीडियम्स एंड टूल आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिससे आप जो है कैरेक्टर की पेक्युलरिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम एचआर में कैरेक्टर और पर्सनालिटी ट्रेट, जिसको हम कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं एचआर की जुबान में, और वो कॉम्पिटेंसीज डिफाइंड होती हैं हर जॉब रोल के लिए। वो कैरेक्टर रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज भी होती हैं, जैसे कि कुछ हमारी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज होती है और कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं। कोर कॉम्पिटेंसीज हम उनको कहते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किरदार के हवाले से, जो लिंक होती हैं कंपनी के ओवरऑल जो वैल्यूज के साथ। तो जब हम कोर कॉम्पिटेंसीज किसी की आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट बैटरीज बनाते हैं। बैटरीज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट का एक पूरा हम एक टूल बनाते हैं, जिसमें हम सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट भी कर रहे होते हैं, उसमें हम केस स्टडीज भी दे रहे होते हैं, और सिनेरियो बेस्ड जो है वो केस स्टडीज दे के उस पे हम इवेल्युएशन भी कर रहे होते हैं। हमने यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में, चूंकि मैंने जिन इदारों में काम किया उसमें कुछ मल्टी नेशनल्स भी हैं, और चूंकि हमारी मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी ग्रो अप किया है हायरिंग के हवाले से, तो हमारे पास असेसमेंट सेंटर्स होते थे जिसमें हम बाकायदा टूल्स डिवाइस करते थे जो कि साइकोलॉजिकली प्रूवन टूल्स होते थे, जिसमें हम लोगों से उनकी पर्सनैलिटी के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते थे। जैसे कि हमारे पास एक टेस्ट होता था MBTI, मर्सबर्ग टाइप इंडिकेटर, जिसमें 16 डिफरेंट पर्सनैलिटीज के ट्रेड्स को हम आइडेंटिफाई करते थे। वो एक तरह का सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री होता था जिसमें इंडिविजुअल जो है अपनी जो है पर्सनैलिटी के ट्रेड्स पे टिक करता था अकॉर्डिंग टू जो उसको लगता था, और उसमें कुछ रिवर्स क्रॉसिंग क्वेश्चंस होते थे। अगर वो कहीं झूठ बोल रहा होता था तो वो भी रिवर्स हो जाता था, और उन टूल्स की बुनियाद पे, जो कि बड़े वेल प्रूवन टूल्स होते हैं, उसकी बुनियाद पे हम पर्सनैलिटी के वो कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई कर रहे होते थे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट होती थी। तो अगर कोई इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर ले भी लेता था, लेकिन अगर वो कोर कॉम्पिटेंसीज जो हम किसी इंडिविजुअल में देखते हैं वो अगर हमें नहीं मिलती थी, तो हम उस कैंडिडेट को हक होता था एचआर के पास कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। सिचुएशनल जजमेंट के अलावा हम ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम ड्यूरिंग इंटरव्यू भी नॉन वर्बल क्यूज से और सिनेरियो बेस्ड सवालात में क्वालिटेटिवली भी चीजों को जो है वो लोगों के नॉन वर्बल क्यूज से भी आइडेंटिफाई कर रहे होते थे। इसी तरह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम पूछ रहे होते थे, जैसे कि किया कि जी आप हमें ये बताएं, आपके ख्याल में इंटेग्रिटी इन द वर्क प्लेस इसका मतलब क्या है। अब उस पे जो जवाब होता था वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। जवाब की बुनियाद पे हम बहुत सारे जजमेंट्स बना रहे होते थे, और बाय द टाइम ड्यू टू एक्सपीरियंस ये पता चल जाता है कि वो जो जवाब दे रहा है वो कितना रेजोनेट करता है उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के साथ। उसके अलावा जी हमारे पास बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते थे। जैसे हमने बिहेवियरल इंटरव्यू में कैंडिडेट को एक 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 पास्ट में आपके साथ ये सिनेरियो हुआ तो आपने कैसे उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड किया, तो वो जो रिस्पॉन्स बताता था उसकी बुनियाद पे हमें पता चल जाता था कि वो उस पर्टिकुलर को फॉलो कर रहा है और कितना नहीं कर रहा। फिर उसके अलावा आमतौर पे हमारे पास टूल होते हैं कि हम रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी करते हैं कि जी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। हायरिंग का डिसीजन कर रहे होते हैं। सिमिलरली हम रेड फ्लैग्स को वॉच करते हैं। जब कोई इंटरव्यू दे रहा होता है तो कितना वो ब्लेम शिफ्टिंग की तरफ उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, यानी कि वो अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी बुराई कर रहा है या कितनी अपनी अकाउंटेबिलिटी को किसी अपने पुराने मैनेजर पे शिफ्ट कर रहा है ड्यूरिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन,
या वो इनकंसिस्टेंट कितना है, उसकी बातों में जी। कॉन्ट्रडिक्शन कितनी है, वो एक स्टोरी को जब दूसरी स्टोरी के साथ लिंक कर रहा है तो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है उसकी बातों में। फिर उसके रिस्पॉन्सेस में वेगनेस कितनी है, जब हम बिहेवियरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कितना वेग बिहेवियर है, कितना वेग जवाब दे रहा है, लैक ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है, या लैक ऑफ स्पेसिफिक इंसिडेंट रिपोर्टिंग नहीं है उसके सवाल में। सिमिलरली जब वो बात करता है तो वो कितनी नेगेटिवली चीजों को लेके चलता है। लेट्स से हम उससे पूछते हैं कि जी आपने अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में को क्यों छोड़ा, तो वो कहता है जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बुराइयां थी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होता था, कॉम्पनसेशन अच्छी नहीं थी, लोग अच्छे नहीं थे। तो दैट मीन्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, लोगों के बारे में, अपने पास्ट एम्प्लॉयर के बारे में इतना नेगेटिव बोल रहा है, तो वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, डिसओन कर रहा है अपने बिहेवियर को और ब्लेम शिफ्ट कर रहा है किसी एक इंस्टीट्यूशन पे। तो ऐसा होल इंस्टीट्यूशन बुरे नहीं होते, बिकॉज वो जो जिनका जो वो लोग जिनका जो जिनकी इंटेग्रिटी, जिनकी डिसिप्लिन अच्छा होता है, जो किरदार में जिनका बाय द टाइम जिन्होंने किरदार को बहुत बेहतर कर लिया होता है, जो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर दिखाते हैं, वो बुरे ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और एटलीस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बैड माउथिंग नहीं करते। तो हमारे नजदीक बैक माउंटिंग करने वाला कोई भी अगर कोई कैंडिडेट आता है तो वो एक नेगेटिव बिहेवियर के तौर पे कंसिडर होता है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टूल्स जिसमें क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली वी आइडेंटिफाई, कल्चरल फिट असेसमेंट करते हैं, फिर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जो हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स हायर करते हैं जो बिल्कुल यंग प्रोफेशनल्स होते हैं यूनिवर्सिटी से जिनको उठाते हैं, उनका तो हम ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। ग्रुप डिस्कशन में पता चल जाता है कौन किस तरह बिहेव कर रहा है, कौन कितना निगेट कर रहा है किसी अदर टीम मेंबर के बारे में। इसी तरह हम एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग करवाते हैं। और अब एक नया कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है वो है गेमिफिकेशन। देर आर सर्टेन गेम्स जो ऑनलाइन होती हैं और वो गेम में आप लोगों की मेमोरी और इंटेलिजेंस के साथ साथ उनके कैरेक्टर की पेक्युलरिटीज को भी, कोर कॉम्पिटेंसीज को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल झूठ बोलने की टेंडेंसी कितनी है, या सच छुपाने की टेंडेंसी कितनी है, या मे बी उसका इंटेग्रिटी के कितने मसले हैं, इन 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 ग्रुप वो जो है कितना कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर शो करता है। ये सारी चीजें जो है ना वो हम आइडेंटिफाई भी कर रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं। सो ये बहुत सारे, ये इसी तरह के और भी बहुत सारे टूल एंड दीज आर सम ऑफ द टूल विच वी एम्प्लॉय व्हाइल हायरिंग अ पर्सन जो क्वालिफिकेशन में तो अटेन कर ली इसीलिए हमारे इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू के बाद वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फिट है, हमारे कल्चर के लिए कितना फिट है, हमारी सिचुएशनल में कितना फिट है, उसमें ये हम डिफरेंट सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, और बहुत डिफरेंट साइकोलॉजिकल बैटरीज अप्लाई कर रहे होते हैं जिसकी बुनियाद पे we check the characteristics of individual कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा आफ्टर हायरिंग। थैंक यू वंडरफुल। सो मच दादा, थैंक यू सो मच। रजत भाई आपकी तरफ आते हैं, देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको लगता है कि अब इस बैलेंस को बड़ा इंपॉर्टेंट ले रही है, जैसे कि दोनों तो चाहिए, खाली कैरेक्टर भी ना काफी डेफिनेटली उसके लिए, तो क्या फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है उसमें ये बैलेंस हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन खासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इस शिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा है कि नीड अ मिक्सचर? जी बिल्कुल। आई थिंक द कॉर्पोरेट सेक्टर everywhere in the world is giving importance to ethics and culture as well. बल्कि ये कहा जाता है कि ये एटीट्यूड और कल्चर ही ऐसी चीज़ है जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टेक्निकल स्किल्स हैं वन कैन इम्प्रूव एनी टाइम। आपको शॉर्ट कोर्सेज की सूरत में कोई भी मौजू हो, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और चीज़ें मौजूद हैं जहां आप इसको सीख सकते हैं, लेकिन करेक्टर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये फर्द को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करना होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि वंस आई हैड टू डू असाइनमेंट फॉर ए ऑस्ट्रेलियन फर्म। तो मुझे ट्रेनिंग वहाँ पे करनी थी। तो उनके जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि जी वी we have shortlisted you and we want you to do this task for us, but we want you to meet our chief in our office. मैंने कहा इट्स ओके, यूजुअली वी डू सच थिंग्स। तो मैं उनके पास गया एंड शी वाज अ लेडी, एन ओल्ड लेडी ओवर देयर। तो वो उन्होंने मुझसे मुख्तलिफ बातें, चंद एक बेसिक किस्म की गुफ्तगू की, एंड दैट शी आस्क्ड मी, वेल मिस्टर आकिफ, यू नो वी हैव टू मेनी अदर टॉपिक्स टू ट्रेन आवर पीपल, कैन यू डू दैट?
तो मैंने उन्हें कहा कि नो मैम, आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, यू नो एवरी पर्सन हैज हिज हर ओन डोमेन एंड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। तो इस पे वो जो सीनियर खातून थी, उन्होंने फौरन अपने मैनेजर को मुखातब किया और कहा कि हायर दिस पर्सन बिकॉज ही हैज एथिक्स। एक जुमले से उन्होंने डिसीजन लिया कि जो बात को साफ कर सकता है, ये नहीं कि जो सारा बिजनेस मैं समेट लूं, बल्कि उसने एक सही बात की। तो आई सी कि ये चीज़ें वक्त के साथ साथ और भी होंगी, क्योंकि अदारों के अंदर एक फास्ट पेस के साथ काम होना शुरू हो गया। डिपेंडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ना हो तो मुश्किल हो जाता है कि अदारा या जो टीम लीडर है वो कैसे चीज़ों को आगे लेके चले। तो छुपाया नहीं जा सकता चीज़ों को, ये सीवी से ही हम कर लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं जहाँ से पर्सनैलिटी का अंदाज़ा कर लेते हैं हम। सीक्वेंस ऑफ जॉब्स एंड एक्सपीरियंस। और बड़ी एक अहम बात गजाला साहबा ने की कि जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप अपने मुल्क, कल्चर, अदारे के मतलब कैसे बात करते हैं, यहाँ से चीज़ें जज होती हैं कि आप ब्लेम गेम पे बिलीव करते हैं या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो चीज़ों को लेके चलते हैं। सो माय आंसर इज यस, द एम्प्लॉयर, the organizations are looking for people who have demonstrated character in their past, and they would like to recheck through the background check as well. Please. Thank you so much. Radala, आज का last topic. With automation and AI reshaping the job market, do you think character will become even more important than degrees? इसलिए कि बहुत सारी चीजें automation पे shift हो गई हैं. So it's just a question. Do you think with this kind of automation, AI use, it's reshaping the like job market? So character की value ज़्यादा हो जाएगी degree से? Sorry, please come again. आपकी आवाज नहीं आ रही। With this automation and AI reshaping the job market, do you think character role or character will become more important than degrees? इसलिए कि बहुत सारी चीजें जो डिग्रीज की रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेशन करना शुरू कर चुका है। तो आपको लगता है कि कैरेक्टर का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, इसकी तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा हो जाएगी टू रादर देन डिग्रीज? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एआई बहुत स्पीड के साथ जो टेक्निकल रेवोल्यूशन आ रहा है एआई के थ्रू, उसके बाद डिग्री की वैल्यू डेफिनेटली बहुत हद तक रिड्यूस होने वाली है। यस, डिग्री विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रंट फैक्टर व्हाइल हायरिंग, लेकिन डिग्री का रोल बहुत हद तक रिड्यूस होने वाला है, बिकॉज एआई और ऑटोमेशन जो है वो नॉलेज टास्क को तो कम करने ही लगा है। आप कैरेक्टर इन यूनिकली ह्यूमन लाइक ट्रेट लाइक इंटेग्रिटी, एम्पैथी, रेजिलियंस, क्यूरियोसिटी, एडाप्टेबिलिटी, एथिकल जजमेंट, कोलैबोरेशन, ये सब चीजें जो है ये सब आपके एआई के साथ बहुत हद तक लिंक होने वाले हैं। स्किल बहुत हद तक आपका किरदार को निखारता है। जितनी आपकी स्किल अपलिफ्ट होती हैं उतना आपका किरदार अपलिफ्ट होता है, उतना आपका कैरेक्टर अपलिफ्ट होता है। क्योंकि जॉब मार्केट बहुत हद तक जो है वो हाइब्रिड मोड पे चेंज हो रही है। हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि अब ऑफिस स्पेस में काम करने का रुझान बहुत हद तक कम हो रहा है। अब यूजली रिमोट लोकेशन से लोग काम कर रहे होंगे। वो रिमोट लोकेशन आपका घर भी हो सकता है जहां से बैठ के आप ऑफिस का काम कर रहे होंगे। तो जब आप रिमोट लोकेशन से काम करेंगे तो आपकी इंटेग्रिटी, आपकी डिसिप्लिन, आपका ऑर्गेनाइजेशन की टाइम को वैल्यू देना, आपका ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना, आपका दूसरों की जो स्पेस ऑफ एआई स्पेस है उसके अंदर किस तरह आपने बिहेव करना है, इस सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता चला जाएगा। बिकॉज आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तो देयर इज समवन हु इज मैनेजिंग यू। लेकिन यहाँ आप इंडिविजुअली अपने काम को मैनेज कर रहे होंगे, तो आप खुद ही अपने सुपरवाइजर भी होंगे। तो जब आपने खुद ही खुद को मैनेज करना है तो आपको डिसिप्लिन, कैरेक्टर, इंटेग्रिटी, इसका बहुत ज्यादा जो है रोल बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये कि पेस ऑफ चेंज, जब भी चेंज आता है
किरदार का जो रोल है वो बहुत बढ़ जाता है, कैरेक्टर का रोल बहुत बढ़ जाता है। ये जो एआई रेवोल्यूशन के बाद पेस ऑफ चेंज आया है, यहाँ डिग्री तो कहीं बहुत पीछे रह गई है। यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही होगा। आप कितने अडॉप्टेबल हैं विथ न्यू टेक्नोलॉजी, आप में ग्रोथ माइंडसेट कितना है, कंटिन्यूस लर्निंग एंड नेविगेटिंग द पेस ऑफ वर्क आप में कितना अच्छा है। वही बात कि आपको मैनेज करने के लिए कोई सुपरवाइजर आपके सर पे हो सकता है ना बैठा हो, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। आप अपने खुद ही सुपरवाइजर हैं, आपने खुद ही अपना टाइम, अपनी स्पीड, अपनी एफिशिएंसी, अपनी क्वालिटी को खुद ही जो है वो चेक करना है। तो यहाँ तो किरदार का रोल बहुत बढ़ने वाला है एआई के बाद। फिर कैसे जो है एम्पलीफाई होगा कैरेक्टर एआई के आने से? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इंश्योर एआई इज यूज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड इफेक्टिवली। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कैरेक्टर होगा उतना रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप अपना डिजिटल स्पेस मैनेज कर सकेंगे। पुअर कैरेक्टर, आप जितना पुअर आपका कैरेक्टर होगा उतना आप एआई को मिस यूज करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटल इंफॉर्मेशन को मिस यूज करेंगे, आप हार्मफुल होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डेट्रीमेंटल होंगे, और अल्टीमेटली आप एथिकल कंसिडरेशन की बुनियाद पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नाकाम होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली एआई के आने के बाद आपका रोल, आपके किरदार का रोल बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके एआई ने आपके नॉलेज टास्क को भी ऑटोमेट करना है ना। डिग्री तो ट्रेडिशनली वाज द साइन ऑफ फंडामेंटल नॉलेज। एआई टूल आर नाउ द basically AI tools are now something where apart from degree you have to be on the forefront on every किरदार आपका बहुत हद तक डिट्रीमेंटल फैक्टर होगा, इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा। एआई आने के बाद आपकी सक्सेस किस तरह आपने लीड करनी है। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। Arshdeep, last point. What kind of leaders will future require? Highly qualified or highly principled? आई थिंक बोथ। लेकिन फाउंडेशन जो है वो मेरे नज़दीक ये है कि डिग्री इज एन अचीवमेंट एंड करेक्टर इज ए लेगेसी। करेक्टर स्पीक्स व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। और इसमें स्टीवन कवी ने कहा था, आई विल कंक्लूड लाइक दिस, कि बी केयर ऑफ योर थॉट्स बिकम योर action, your words. Be careful of your words, they become your action. Be careful of your action, they become your habit. Be careful of your habit because that determines your destination. So it starts from the thinking and character-based destination and traveling. Thank you. Thank you so much. एक दो क्वेश्चन थे, दो नोट रेलिवेंट, बस मैं क्विकली मैं ही उनको वो कर रहा हूँ। तुबा साहिबा, आपने बताया कि आपने मास्टर्स किया है, गोल्ड मेडल किया है, कराची से आप लाहौर शिफ्ट होना चाहती हैं, बट आपका एक्सपीरियंस नहीं है। जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, इंटर्नशिप की है, गोल्ड मेडल है, तो उसका प्रोफाइल बना है अपना, ताकि आपकी डेप्थ पता चले, आपको जॉब में डेफिनेटली आसानी होगी। नहीं तो अपने बल पे पेज के पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। इमली साहब, आप कह रहे हैं डिसिप्लिन कैसे लाए, तवज्जो दें चीजों को। जो ऐसे काम होते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं जो रेगुलर लेट आते हैं, तो ऐसी चीजों पे फख्र करना छोड़ दें। ठीक है, ऐसी चीजों पे रूल्स को फॉलो करें, डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच। गजाला, लास्ट लाइन, क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर अवर ऑडियंस। जी, it was a wonderful experience of interacting with you all, especially Rana Khurram और आकिब साहब के साथ. It's wonderful experience because this session was something जिसमें I learned a lot from both of you. Apart from that, I wish you all the best to all the audience who are there to learn from our experiences. And I can just say, जो भी हमारे यंग चैंप यहाँ पे अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लिए देखें, एक बड़ा बज वर्ड है जेनजीज के लिए कि दे आर द टफेस्ट जनरेशन ऑफ ऑल द टाइम। बिकॉज चूंकि जेनजीज जो हैं ना डिसिप्लिन को मानते हैं, और चूंकि एडवांसमेंट को बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया हुआ है उन्होंने, तो इसलिए वो हर जगह अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो इदारे के कवानीन होते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने
ऑर्गेनाइजेशन की को वैल्यू नहीं दिया और अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो वेरी लाइकली जेन जी बहुत बुरी तरह खुद भी फेल होगी, अपने पेरेंट्स को भी फेल करेगी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी फेल करेगी। तो जेन जी को अपना ये टैबू तोड़ने के लिए अपने आप को प्रूव करना होगा कि नॉट ओनली दे आर गुड इन टेक्नोलॉजी, दे आर इन गुड कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन एज वेल। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं सारा दिन इस बज़वर्ड में चल रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ यंगस्टर्स को, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को समझते हुए अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करें, वरना इस जनरेशन को लेकर बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस हैं जो पुरानी जनरेशन है उनको लेकर। तो यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। अर्शद भाई, क्लोजिंग रिमार्क्स। जी, आई विल रिपीट माई वर्ड्स कि एजुकेशन इज योर अचीवमेंट एंड करेक्टर इज योर लेगेसी। आप कैसे जाने जाएंगे कि आपका करेक्टर तय करेगा, वो आपकी शायद टेक्निकल नो हाउ जो है वो पीछे रह जाती है। एट द एंड पीपल रिमेंबर हाउ डिड यू टॉक विद देम, हाउ डिड यू बिहेव विद देम, एंड दैट कम्स फ्रॉम योर करेक्टर। थैंक यू। थैंक यू सो मच अज़ाला, आपका, अर्शद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस टू अवर यूथ। एंड आप माशाल्लाह आज की अटेंडेंस बहुत अच्छी है, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। कुछ एक दो इरेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं लिए, आप लोग अपने बल पे के पेज पे, अपने बल पे जो हमारा है उसके पेज पे क्वेश्चंस लिख दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या मैं हमारी टीम में से कोई आपको रिप्लाई कर देगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 47th नंबर वेबिनार के साथ फिर हाजिर होंगे हमारे दोनों स्पीकर्स। बहुत थैंक यू सो मच एंड रियली अप्रिशिएटेड। ऑडियंस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you. अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज।